Hello students, today's topic is medicinal uses of isoquinoline. Medicinal uses of isoquinoline, papaverine. This is isoquinoline moiety present in isoquinoline structure, present in papaverine structure. It is used as vasodilator and smooth muscle relaxant. Smooth muscle relaxant. Used to treat many conditions that cause spasm of smooth muscles. Spasm of smooth muscles. And this papaverine lowers the blood pressure and allows blood to flow and more easily through the veins and arteries. So vasodilator act as a papaverine smooth muscle relaxant. Next use emetins. That is 1, 2, 3, 4 tetrahydroisoquinoline moieties. So emetin is the another isoquinoline derivatives in medicinal compound. This is ipecac alkaloids used as antiprotozoal and induce vomiting. That means induce events. मेडिसिनल यूजेस ऑफ आइसोक्विनोलिन्स में जो पापावरिन जो है यहाँ पे पापावरिन जो है वो एक वैसोडाइलेटर एक्ट करता है, ठीक है, और ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्ट करता है. यूज्ड टू ट्रीट मैनी कंडीशंस दैट कॉज स्पास्म ऑफ स्मूथ मसल्स. और ये क्या करता है, लोअर्स बीपी एंड अलाउज ब्लड टू फ्लो मोर इजी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज. ठीक है. इमेटिन इसका नेक्स्ट यूज है आइसोक्विनोलिन्स का. इमेटिन इज इपिकैक एल्केलॉइड्स यूज्ड एज बोथ हैंड. ये एंटी प्रोटोजोअल भी एक्ट करता है और वोमैटिंग भी इंड्यूस करता है, ठीक है, जिसे मैसेज कह सकते हैं यहाँ पे. तो ये इसका यूज होता है. ये पापावरिन के थ्रू से ये एक वैसोडाइलेटर एक्ट करता है, बीपी लो करता है. और इमेटिन में क्या करता है, जो इपिकैक एल्केलॉइड्स को यूज करता है, तो ये क्या करता है, एंटी प्रोटोजोअल और ये वोमैटिंग इंड्यूस करता है. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, आइसोक्विनोलिन्स प्रेजेंट होते हैं. Next compound having isoquinoline moieties and derivatives of that is narcotin. Here you can observe the structure of narcotin. This is the portion of isoquinoline moieties in which the two double bonds are reduced. Second, third, fourth
double bond 1 2 3 4 tetrahydro isoquinoline moieties, which is considered as another example to this narcotin, also called as narcosin. It is used as anti-tussive agents, that means cough suppressant, and next some other drug which having isoquinoline moieties is quinapril. Quinapril is a class of ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. It is used as antihypertensive drugs. It lowers the high blood pressure conditions and prevent the strokes and prevent heart attack condition. That is use of quinapril. ठीक है, तो ये इसका जो है लास्ट यूजेस है क्विनाप्रिल्स का। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ये क्या है, इसका आइसोक्विनोलिन मॉइटी है। सबसे पहले ये क्या है, एक नारकोटिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस नारकोटिन के स्ट्रक्चर में हमको क्या मिलता है, आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव मिलता है, आइसोक्विनोलिन मॉइटीज मिलती है इसमें। ठीक है, तो ये जो आइसोक्विनोलिन जो रहता है इस नारकोटिन में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी यूज एज एंटी ट्यूसिस एजेंट, या इसे क्या कहते हैं, कफ सप्रेसेंट एजेंट में भी इसे यूज करते हैं। अब इसमें एक और ड्रग आता है, उसमें है क्विनाप्रिल। ठीक है, क्विनाप्रिल में भी क्या रहता है, ये आइसोक्विनोलिन मॉइटीज रहता है, जो क्या करता है, इसमें हाई जो बीपी रहता है उसे ये लो कर देता है, और स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करता है, और प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक्स को। ठीक है, तो ये इसके हो गए यूजेस ऑफ आइसोक्विनोलिन्स। ये है इसके मेडिसिनल यूजेस आइसोक्विनोलिन्स के। तो हमने आइसोक्विनोलिन्स के जो टॉपिक्स है वो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर उसका हमने देखा था सिंथेसिस, फिर देखा केमिकल उसका रिएक्शन, और लास्ट में हमने देख लिया मेडिसिनल यूजेस। एक्रिडिन, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिडिन, it is a fused heterocyclic ring system, consists of two benzene rings fused with pyridine moieties, and it consists of nitrogenous heteroatoms, and the position of heteroatoms in 10th position. So the position of heteroatom, that is 10th position, according to the general numbering system, are the heterocyclic compounds. The numbering system started from the heterocyclic compounds, but कुछ केसेस में क्या होते हैं, ये जो नंबर रहता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, वो हम इस पोर्शन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, that followed by the next another benzene ring system, that pyridine moieties contain carbon 9 position and nitrogen 10 position, and according to the nomenclature system, acridine, which is also called as dibenzo pyridine. So give the pyridine moieties present in the like this alphabet A B C D E and F. So the fusion center of acridines also be B side and E side. So which is considered as dibenzo pyridine, and which is also recorded as 2,2,3 benzoquinones. For example, you consider structure like this. This is considered as quinolines. So if considered quinoline numbering system 1 2 3 4 5 6 7 8. So in case of acridine, the quinoline consists of second and third position of fused ring
with another benzene moieties, so that this is considered as 2,3-benzoquinolines. Then coming to the aromaticity of this acridine. Acridine is considered as aromatic heterocyclic compounds because it has planar conjugated ring structure consisting of four delocalized pi electrons, which are arise from the 7 double bonds which are present on the ring system. So the 7 double bond, it follows the Huckel rules, where N is three aromatic compounds. ठीक है. एक्रीडिन का स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्रीडिन. ठीक है. तो क्या होता है, जो हेटेरो एटम्स के जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा हेटेरो एटम्स रहता है वो हम वहीं से क्या करते हैं, नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. तो 1 2 3 4 अनदर बेंजीन रिंग 5 6 7 8. ठीक है. फिर लास्ट में इसका किए तो कार्बन 9 पोजीशन पे, नाइट्रोजन 10 पोजीशन पे है. ठीक है. तो इसका नेम क्या हो गया, डाई बेंजीन पैरिडीन 2,3-बेंजोक्विनोलीन. ठीक है. अब अकॉर्डिंग ये क्या है, एक्रीडिन इज अ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ये क्या है, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. अब फ्यूज्ड क्यों बोला गया, हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसे हम क्यों ऐसा बोले. 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद पैरिडीन रिंग. यही बस लिखने, हमें स्ट्रक्चर एक बार बना देना, उसके नीचे हमें उसके बारे में डिटेल्स डाल देना कि ये क्या था. 2 बेंजीन रिंग्स विद एक क्या है, इसमें पैरिडीन रिंग है. इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस हेटेरो एटम्स एट 10th पोजीशन. और ये क्या कंटेन करता है, नाइट्रोजन को और हेटेरो एटम्स को कौन सा पोजीशन पे, तो 10th पोजीशन पे. और इसका हमको नॉमेनक्लेचर बता देना है, डाई बेंजो पैरिडीन या 2,3-बेंजोक्विनोलीन. ठीक है. मैंने एक बार और बताती हूँ. हमें एक्रिलिन में हमें 3 स्ट्रक्चर्स याद रखने. 3 स्ट्रक्चर्स में होगा 2 बेंजीन एंड 1 क्या होगा, पैरिडीन होगा. 1 जो होगा ये क्या होगा, पैरिडीन का स्ट्रक्चर. तो 2 बेंजीन हम अटैच करेंगे, 1 पैरिडीन, उसमें नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट रहेगा. अब इसका हम नंबरिंग, ठीक है, एक बेंजीन रिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट दूसरे बेंजीन रिंग में जाएंगे, फिर हम किसमें जाएंगे, इस बीच वाले जो स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे. ठीक है. फिर नीचे उसके बारे में हमको डिटेल लिखना है, फिर हमें उसका बताना है यहाँ पे नॉमेनक्लेचर. बस ये इसका हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्रीडिन खत्म हो गया. Coming to the synthesis and preparation methods of acridins. Ullmann synthesis. In this Ullmann synthesis, the acridin derivatives that can be prepared from the 2-chlorobenzoic acid. 2-chlorobenzoic acid, ketone reaction with aniline in presence of base. So this chlorine and amino group going to be reacted. Together that leads to produce the diphenyl amino 2 carboxylic acids. So this is a portion that is nothing but diphenyl amine moiety consisting of carboxylic acid. So this is diphenyl amino 2 carboxylic acids. So further these diphenyl amino 2 carboxylic acids, which on treatment with strong acid, it gives 9-acridinone. So the 9th position, this is ketone functional group.
ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो इसके बाद का प्रोसेस है। पहले इसे हम देख लेते हैं। ये है एक्रिडीन का सिंथेसिस। इसमें फर्स्ट सिंथेसिस जो है वो है उलमैन सिंथेसिस। ठीक है, जो उलमैन सिंथेसिस है वो हम करते हैं फॉर्म 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड या डाइफिनाइलएमीन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो जब हम 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं एनिलीन के साथ में, तो वो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के प्रेजेंस में वो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, डाइफिनाइल एमिनो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या करता है, सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है। ठीक है, तो ये बेस हम इसमें यूज कर रहे हैं जो ये बना के दे रहा है। इसके बाद से हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है जिसमें ये क्या करेगा, डाइफिनाइल जो एमिनो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिर से रिएक्शन करके लास्ट में हमें क्या बना के देगा, एक्रिडीन।